کے اندر انرجی. اب اچھا آپ شہد لے لیں, تو شہد میں تو شفا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مکھی کے پیٹ سے جو نکلتا ہے وہ شفا ہے للناس. اس میں اللہ نے مومن یا مسلمان کی بات نہیں کی, سب لوگوں کے لیے شفا ہے نا. ابھی آپ کو کیا کہیں گے, ابھی میں کسی سے کہوں گی جی آپ شہد لے لیں تو وہ کہیں گے پتہ نہیں اصلی بھی نہیں ملتا آج کل شہد, اب شہد کون سا لیں, اب جنگلی لیں, اب سدر کا لیں, اب فارمی لیں, آج کل تو بڑا فراڈ ہے, چینی رکھی ہوتی ہے وہ مکھیوں کو کھلاتے ہیں. آئی بلیو مکھی جو بھی کھا کے اس کے پیٹ سے جو نکلے گا وہ شفا ہے. ویسے یہ ہے تو نہیں, دس از ناٹ ریالٹی کہ, لیکن مکھی اگر روٹی کھا لے گی نا تو اس کے پیٹ سے نکلنی شفا ہی ہے. اصل شفا کہاں بنتی ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے پیٹ کے اندر. تو جب اس کے پیٹ سے جو بھی نکلے گا وہ میرے لیے شفا ہے. شہد کو استعمال کریں ہر طرح کی, آپ کو پتہ ہے ذہنی امراض کے لیے بھی شہد ہے, سیروٹونین نکلتا ہے جب ہم شہد لیتے ہیں تو. اچھا یہ ویسے نہیں پتا تھا. اور شہد آپ ایک چمچ ایک گلاس میں ڈال کے, اور جو بالکل IBS کے مریض ہیں, اب پیٹ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں شہد شفا ہے. شہد آپ دیکھیں آپ مسوڑوں پہ لگائیں, زبان دانت سے صاف کریں, آپ کی تمام مسوڑوں کے مسئلے, بلیڈنگ آپ کی ہو رہی ہے سب صحیح. گلے کے لیے کتنا اچھا ہے شہد, ٹونسلز کے لیے صحیح ہے, پھر آپ کی آواز صحیح کرتا ہے, پھر آپ کے خوراک کو ہضم کرنے کے لیے صحیح ہے, انرجی تو آپ کو دیتا ہے. شہد جو ہے وہ ہیپیٹائٹس A B C جانڈس کا علاج ہے شہد. جتنا ایک ہفتے میں ہم نے جانڈس کے مریض ٹھیک کیے جن کو زیادہ سے زیادہ شہد کھلا کے. جگر صحیح ہوتا ہے, پینکریاس صحیح ہوتا ہے, ہمارے کڈنی کے گردے فیل ہو گئے, ان کا ٹریٹمنٹ ہے شہد, کہ آپ ان کو بوائل پانی یا جو کے پانی کے اندر شہد گھول گھول کے پلائیں. اچھا تو اگر کسی کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہوا ہو, شہد جو ہے اس سے کتنی طاقت آتی ہے. یعنی IBS کے پیشنٹ جو لیٹے ہوتے ہیں نا بستر پہ, جسم کانپ رہا ہے, ان کو میں کہتی ہوں آپ نے سارا دن جو پانی پینا شہد گھول گھول کے پئیں. یعنی ایک گلاس آپ شہد پی لیں پانی تو آپ کو اتنی انرجی فیل ہوتی ہے. جو آپ کیا کرتے ہیں ORS پی رہے ہیں اس کی بجائے آپ شہد پی لیں, اس کے اندر لیمن ڈال لیں, اس کے اندر سالٹ ڈال لیں, وہ آپ کی ایک اچھی شکنجی بن جائے گی, وہ آپ لینا شروع کریں. یہ شیزوفرینیا کا بھی علاج ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا شہد کی شکنجی. اچھا تو پھر آپ دیکھیں کتنے یہ کون سی مشکل چیز ہے کہ آپ کو اس کے لیے اچھا ابھی ہم بتائیں گے آپ شہد لے لیں, بہت مہنگا ہے شہد. آپ جو اتنے مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں, جو ڈاکٹرز کو اتنی اتنی فیسیں دیتے ہیں, اس سے تو مہنگا نہیں ہے. سستا ہے بلکہ ایزی ہے, گھر میں آرام سے خود بنائیں. اچھا لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ طب نبوی کے پروڈکٹس مارکیٹ میں سیل ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ نہ خریدیں نا, آپ کو میں خود بتا رہی ہوں, آپ خود پڑھیں, خود ریسرچ کریں. آپ بخاری میں ساری احادیث ہیں رسول اللہ کی علاجوں کے بارے میں, آپ خود جا کے لیں چیزیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب علاج کے حوالے سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں, تو آپ دیکھیں اس میں بارش کا پانی شفا ہے, ٹھیک, شہد میں شفا ہے, زمزم میں شفا ہے, پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کھجور میں, انجیر میں, زیتون ہے, پھر ایک پھل آتا ہے بہی, ابھی آج کل آنے والا ہے, سردیوں میں تھوڑا آتا ہے, وہ دل کے لیے بہت اچھا ہے, گول سا ہوتا ہے ناشپاتی کی طرح سے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد تربوز ہے, مشرومز ہیں, پھر جو ہے, کلونجی ہے, سرکہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے کیا فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا تو وہاں پہ کوئی بھوکا نہیں ہوگا. تو سرکے کو روٹی کے ساتھ رسول اللہ کھا لیتے تھے, استعمال کرتے تھے. تو سرکہ, یہ سب چیزیں یہ میں ایک لسٹ لکھ کے لائی تھی کہ یہ زیرہ ہے, پھر اس کے اندر زیرہ بہترین ہے, پھر ایک حب الرشاد ہے, مہندی کے پتے ہیں, پھر سنا مکی ہے, قسط البحری ہے, پھر اس کے بعد کاسنی ہے, میتھی دان ہے, منقع, انگور, انار, یہ ساری چیزیں ہیں جن میں سے اکثریت کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, ابھی میں نے جتنی چیزوں کے نام لیے, آج کل کی جنریشن کی زندگی میں یہ چیزیں ہیں؟ نہیں ہے.
सच बताऊं तो नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। तो फिर उनको शिफा कैसे मिलेगी? हमारा तो बहुत ज़्यादा कबाड़ा होगा इस वजह से, क्योंकि हमारी जो पिछली जनरेशन थी वो फिर कहीं ना कहीं अपने हेल्थी डाइट्स के साथ चल रही थी, अच्छे फल सब्जियां सब कुछ। अब तो फास्ट फूड और ये सब चीज़ें आई हैं, इसके बाद तो मेरे ख्याल से हमारा तो डाइजेस्टिव सिस्टम का दिमाग भी बिल्कुल ख़राब बिल्कुल, हो और चुका कुछ ये भी है कि जो पिछली जनरेशन है उन्होंने अपने बच्चों को के ऊपर उतनी मेहनत नहीं की। मतलब अभी मैं देख रही थी कि जैसे हम लोग या हमसे बात, वो लोग ना, बच्चे छोटे होते थे, 1 साल का बच्चा हुआ है, 1.5 साल का, तो उसको बाउल में सौंफ डाल के दे दी। वो जैसे बच्चे खेल रहे हैं खाने के लिए, छोटे बच्चे, वो एक सौंफ आती थी, मीठी सी सौंफ ना, मीठी भी सौंफ आती थी, वो दे दी उसको। जो आप आजकल कहेंगे पान मसाला है, ठीक है, तो सौंफ दे देते थे बच्चों को। अक्सर चने दे देते थे बच्चों को खाने के लिए, चने खा लें, किशमिश डाल देती थी बीच में। फिर एक वो फुलियाँ आती थी, आपको तो ये नाम भी अजीब लग रहे होंगे, वो नमकीन और मीठी, तो ये चीज़ें होते थे बच्चों के स्नैक्स। तो आप सोचें कि वो 3-4 साल तक डेली बच्चे को इतनी इतनी एक एक चम्मच भी दे रहे हैं, तो आप बताएं बच्चे ने कितनी ये चीज़ें खा ली जो कि उसकी पूरी बॉडी को सही कर रही है, और स्पेशली उसके दिमाग को मजबूत कर रही हैं। और आजकल माँ 1 साल का बच्चा सलांटी का पैकेट खोल के दे दिया, ये आसान लग रहा है। हाँ, मैं कभी भी जाती हूँ ग्रोसरी के लिए, माएँ सबसे ज़्यादा भर भर के ये पैकेट खरीद रही हैं, तो फिर बीमारी तो फिर आनी है। और छोटे छोटे बच्चों को इतनी एंटीबायोटिक्स, सबसे जो अच्छी एंटीबायोटिक है हल्दी है। तो आप कहेंगे, अगर अभी कोई कहेगा मुझे फ़ोन कई दफ़ा करते हैं, मैसेज आएगा, कई ख़वातीन का, हर तरह के लोग होते हैं, अच्छा आप कौन सी मेडिसिन देती हैं, अच्छा फ़लाँ चीज़ के लिए क्या है, हल्दी बताओ, है हल्दी, अच्छा यहाँ तो कोई बहुत बड़ा पैकेज कोई मिलना था आपको मेडिसिन का, कोई डब्बा। यहाँ तो हमारी ये भी एक साइकोलॉजी है ना कि हमें हर वक्त अपने आप को बीमार शो करना है, सेल्फ पिटी का शिकार रहना है, और जितनी ज़्यादा जो दवाइयाँ खाएगा ना, उतना पता नहीं कोई सिंपैथी ले हाँ सिंपैथी गेन करनी है, आई डोंट नो, मतलब ये फ़ख्र की बात है जितनी ज़्यादा दवाइयाँ खाएंगे। आजकल मतलब ये हमारी और एज के भी लड़के और भी हम बताते हैं हमारी मेडिसिन इतनी महंगी आ रही है, इतनी ज़्यादा मेडिसिन आ रही है, पता नहीं कितने केमिकल्स ये लोग खा चुके हैं, डेली खा रहे हैं केमिकल्स। और कुछ लोगों का तो ये बिलीव है कि उनको ताकत लेनी है तो उन्हें ड्रिप्स लगवानी है, हर वक्त जाके ड्रिप्स लगवाएं, इंजेक्शन लगवाएं। अल्लाह करे अब ये, मुझे लगता है चेंज भी अगर आया तो इस तरह आएगा कि जब वेस्ट से ये चीज़ें आनी शुरू होंगी ना, क्योंकि हमारी बात की तो इनके आगे वैल्यू ही कोई नहीं है, यानी इवन नबी की बात की भी वैल्यू नहीं है। सही है, तिब्बे नबी को नीचे रखा हुआ है और वो दूसरी मेडिकल को यहाँ ऊपर रखा हुआ है। अच्छा अभी कोई तिब्बे नबी के लिए अगर कोई आपको ट्रीटमेंट कर रहा है, या अगर कोई आपके लिए घंटा लगा रहा है, अगर वो आपसे कहेगा मुझे 2000 दे दें, तो ओए, और वो दूसरे आपको 10 मिनट 5 मिनट के लिए 5000 भी ले लेंगे तो बस ठीक है। तो हमने तिब्बे नबी को सबसे ऊपर रखना था, तिब्बे नबी को सबसे नीचे रख दिया। और अब यही है कि ये तिब्बे नबी की चीज़ें जो हैं, ये वेस्ट इसके ऊपर तहकीक कर करके वो अब यूज़ कर रहे हैं। मतलब ऑर्गेनिक्स, बाहर तो ऑर्गेनिक्स के ऊपर वो लोग चले गए हैं, हम लोग अभी तक नहीं जा रहे। और अब वो उधर से जो कुछ आएगा फिर हो सकता है यहाँ पर भी उसको करें, क्योंकि इन बुक्स का यकीन नहीं है उनको, लेकिन वो जो वहाँ से रिसर्च आती है उसका ज़्यादा यकीन है। वहाँ से तो हम होलसेल इंपोर्ट करते हैं ना हर चीज़ जो भी आ रहा हो। अच्छा, 2 बीमारियाँ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आम है, पाकिस्तान में भी कह लें और बाहर भी कह लें, एक शुगर और एक ब्लड प्रेशर। इवन के बहुत आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि यंग एज वाले लड़कों लड़कियों में भी कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं, शुगर हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इन 2 बीमारियों का आप कोई इलाज बताएं। इलाज तिब्बे नबवी ना पूरा लाइफस्टाइल है, तो अगर किसी ने सिर्फ पूरा इसका इलाज लाइफस्टाइल है। कराना हो, अब वो आप फिर मुझे बताएं कि मैं सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैंने आपको ब्लड प्रेशर जो है वो हार्ट की वजह से होता है, आपका हार्ट सही काम नहीं कर रहा उसमें, तो आप साथ साथ केमिकल्स खाते रहें, साथ साथ आपकी डाइट वही रहे, तो फिर आपको फ़र्क कैसे पड़ेगा? ठीक है, तो वो चीज़ें जो आपको नुकसान दे रही हैं वो तो आपको छोड़नी पड़ेंगी। अभी तो इतना ज़्यादा ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं और ये फिज़ी ड्रिंक्स और उसके बाद एनर्जी ड्रिंक्स, और इनकी तैयारी के बारे में भी पता चल रहा है, हलाल हराम का भी कुछ पता नहीं है।
मतलब मैं तो खुद जब मैं पंसार के पास भी जाती हूँ तो मुझे जो चीज़ लेनी होती है तो मैं उसको साबुत लेती हूँ और अपने सामने उसको पिसवाती हूँ. अगर वो कहेंगे ये पिसी हुई रखी है ना, तो मैं पिसी हुई भी नहीं लेती कि मुझे नहीं पता इसमें क्या मिक्स है. ऐसे ही. ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हम जो खा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या है, डिब्बों में डाल के क्या बेच रहे हैं. तो आप खुद बनाएं चीज़ें और खाएं, तो फिर यही है कि आपको तभी फ़र्क पड़ेगा. अच्छा, इसमें ये है कि जब तिब्बी नबवी के इलाज के बारे में हम सुनते हैं तो मुश्किल लगता है. मुश्किल भी लोग समझते हैं. एक ये समझते हैं कि ये एक वो टोटके नहीं, कल्चरल टोटके हमारे पाकिस्तानी, ये उसमें कंफ्यूज हो रहे थे. मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा डिफरेंस करके बताएं कि क्या फ़र्क क्या है असल में दोनों में. देखिए, अगर हमारे जो टोटके भी हम जिसको कहते हैं, अच्छा टोटके का लफ्ज़ किसने निकाला? इसकी वैल्यू काम करने के लिए ना, समझ गए? मतलब आप घर में अगर कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या वो ट्रीटमेंट नहीं है? सिर्फ नाम ऐसा वाई दे वो दिया. से टोटके, हाँ, वो भी तो एक मेडिसिन ही है. मतलब अगर आपको दर्द है तो मैं आपको अदरक का कहवा बना के दे रही हूँ, तो दिस इज अ कंप्लीट जो है ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट टोटका. और अगर वही आप वो उसकी ज़ेंटेक या उसकी कौन सी ये मैदे की आजकल मेडिसिन चल रही हैं, तो वो आप ले लेते हैं तो वो आपका ट्रीटमेंट हो गया. तो ये भी मेडिसिन है. टोटका कुछ कोई चीज़ नहीं है, वो मेडिसिन है. अगर आप हल्दी खा रहे हैं वो मेडिसिन है, अगर आप कलौंजी खा रहे हैं वो मेडिसिन है, अगर आप सौंफ खा रहे हैं वो मेडिसिन है. यानी वो आपको, लेकिन ये है कि वो हमारी खुराक में है तो इसलिए हम उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. वो एक कंप्लीट मेडिसिन है. ठीक, तो यही चीज़ें, अजवाइन कितनी बेहतरीन है. मतलब कोई भी आपके मैदे के मसले हैं, इवन अजवाइन जो है ना, अजवाइन नशा कर को भी छुड़वा देती है. अच्छा. जो आजकल लड़के लड़कियां नशा का शिकार हैं और वो छोड़ना चाहते हैं, तो अजवाइन उसको भी छुड़वा देती है. तो ये छोटी छोटी हर्ब्स जो अल्लाह ने पैदा की ज़मीन से ना, तो इनमें तो अमेजिंग इलाज है हमारे लिए. जो रसूलुल्लाह का एक तरीका हो रहा है हिजामा का भी, कपिंग का, ये भी सुनना है जो अब काफ़ी ज़्यादा ये लोग भी करवा रहे हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह इससे ब्लड की कहीं क्लॉट है, ब्लॉकेज है, वो सब सही हो जाती है. अगर हम ये भी करा लें ना, तो किसी को हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर का कोई मसला नहीं हो ज़्यादा है. लेकिन यहाँ पे जैसे 40+ एज होती है तो अजीब वो अजीब सी अपने आप को बीमारियाँ. 70 प्लस समझना शुरू हो जाते हैं. लड़के तो बिल्कुल ही कुछ काम नहीं करते यहाँ पे पाकिस्तान में. जब आप जॉब कर रहे होते हैं, यहाँ पर भी जो खवातीन जॉब कर रही हैं 60 इयर्स तक, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रही है, तो वो तो एक्टिव ही हैं. वो